Hello my dear students, how are you students? Again you are warm welcome in this next video. This is the video series of chapter number 1st, The Living World for 11th class Biology. So students, in this video we are going to discuss about the taxonomical aid. This is the last video of this chapter. In earlier videos we have discussed all about the chapter. So students, if you didn't watch these videos, go to the playlist and watch from there. So must watch till ending. It is very interesting. So let's discuss about it. What is the taxonomical aid? Techniques, procedure and stored information that are useful in identification and classification of organism are called taxonomical aids. So students, you know the taxonomy we have discussed in earlier video. Taxonomy is the branch of biology which deals with the study of identification, classification and nomenclature of the living organism. This is called taxonomy. So these materials, techniques, procedures or stored data which help in the study of taxonomy are called taxonomical aids. So they are required because taxonomic study of plants, animals and other organisms are basic to almost all branches of biological studies for their proper identification and finding their relationship with others. तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, आप लोगों ने सिस्टमेटिक्स भी पढ़ा होगा. when we relate the newly discovered organism with old discovered organism, जब हम कोई भी नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है तो उसको हम मैच करके देखते हैं या फिर उनको हम रिलेट करके देखते हैं पुराने ऑर्गेनिज्म से कि वो कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है. तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? टैक्सोनॉमिकल एड्स की. यानी जो पुराने एनिमल्स या प्लांट्स जो हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट हैं या एनिमल्स, तो उनके बारे में जो कोई हमारे पास डेटा होगा, कोई रिकॉर्ड होगा, कोई इन्फॉर्मेशन होगी, तभी तो हम मैच करेंगे. तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है इनकी टैक्सोनॉमिकल एड्स की. तब बात करते हैं व्हाट आर दीज टैक्सोनॉमिकल सेज. सो मेनली हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड इम्पॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल aids. So students, let's discuss one by one in detail. So what they are? First we will discuss about the herbarium. So what is herbarium? Students, it is very important. 2 or 3 questions are seen in that one exam, NEET exam and also in AIMS exam. So it is very important. Let's discuss about it. Herbarium. Herbarium is a place where dried and pressed plant specimens mounted on sheets are kept systematically according to a widely accepted system of classification. Herbarium is a repository or storehouse of for future uses. तो आप लोग देखिए, आप देख रहे हैं ना ये फिगर में, आप लोग जो पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में एक बहुत सारी स्टॉक है पेपर्स का. उस पेपर्स के ऊपर बहुत सारे प्लांट्स उसको पेस्टेड किया हुआ है. तो ये क्या है? एक हर्बेरियम सीट है. इस हर्बेरियम सीट यानी कि मोर देन 1 सीड्स आर स्टोर्ड इन अ फाइल इज नोन एज द हर्बेरियम फाइल. हर्बेरियम फाइल. So it is herbarium and many of the herbarium files are stored in a storeroom. This is known as the herbaria. So students, it should be clear to you. So let's understand it in detail. Students, you know हर्बेरियम हम लोग इसको हमने क्यों कहा? हर्बेरियम इसलिए कहा क्योंकि जैसे मान लीजिए हम लोग मोस्टली इसमें हर्ब को रखते हैं, यानी हर्ब से ये लिया गया है. हर्ब से मेनली हम लोगों ने ये हर्बेरियम टर्म टाइप किया है. जनरली क्या होता है, कोई भी प्लांट, एक तो हर्ब को हम लोग पूरा प्लांट, जैसे हर्ब क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जो स्मॉलर होते हैं और साथ में जिनकी बॉडी डेलिकेटेड होती है और आसानी से उनको हम होल बॉडी ऑफ प्लांट उसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं. लेकिन कुछ प्लांट ऐसे जो ट्री हैं या श्रब हैं, तो उनके होल बॉडी को तो हम लोग इस पर पेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनकी ट्विग, उनकी कोई टहनी हो या फिर उनकी केवल रूट या फिर उनका फ्लावर, यानी उनके हम पार्ट्स को जो उसके प्लांट के बारे में जो कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन देते हों, उसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर एक डेटा है प्लांट्स के बारे में. तो प्लांट पार्ट को हम लोग यहाँ पर पेस्ट करते हैं या होल बॉडी ऑफ प्लांट को भी पेस्ट कर सकते हैं. तो ये आप समझ रहे होंगे, ये पूरा स्टॉक जो है वो क्या है? हर्बेरियम फाइल है. और ऐसी हर्बेरियम फाइल पूरा एक स्टोर रूम होता है, उसमें रखे होते हैं, जिसको हम लोग हर्बेरियम हाउस या फिर हर्बेरिया भी कहते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट इन डिटेल.
सो स्टूडेंट्स, यू नो हाउ हर्बेरियम इज़ फॉर्म्ड, कैसे हर्बेरियम को बनाते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग वो प्लांट जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, हर्बेरियम जिसका बनाना है, तो उसको हम लोग कोई पार्ट या एक ट्विग, जैसे मान लो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ट्विग है, तो इस ट्विग को ले लेंगे या पूरा हर्ब ले लेंगे और उसको इस तरह से आप लोग देख रहे हैं, इसको हर्बेरियम प्रेस कहते हैं, हर्बेरियम प्रेस। तो हर्बेरियम प्रेस में क्या करते हैं, हम इस तरह से पेपर में थोड़ा सा उसको रैप करने के बाद प्लांट को और इसमें रख देते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा वेट रख देते हैं। जिससे क्या होता है, प्लांट ड्राई भी हो जाता है और ड्राई होने के साथ साथ प्रेस्ड भी हो जाता है, यानी कि प्लेन हो जाता है, एकदम फ्लैट हो जाता है। तो उसके पार्ट सारे फ्लैट हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको हम लोगों ने क्या किया। अब इसको स्टेप बाय स्टेप भी मैं बताऊँगा, अभी फिगर से आप थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर प्लांट का वह पार्ट जिसको हमने लगाना है, तो उसको हमने अलग किया प्लांट से, उसको हमने थोड़ा सा ड्राई किया और ड्राई करने के बाद इसमें हमने हर्बेरियम प्रेस में रख दिया। जब इसके बाद ये काफ़ी ड्राई और ड्राई हो जाता है और फाइनली ये फ्लैटेंड हो जाता है, प्रेस्ड हो जाता है, तब उसको इस तरह से हम माउंट करते हैं। यानी कोई जो सीट होती है हमारी हर्बेरियम सीट, इस हर्बेरियम सीट पर एक क्वेश्चन भी आता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। इस हर्बेरियम सीट के ऊपर हम लोग इस तरह से इसको माउंट करते हैं। इसको हम टेप से भी लगा सकते हैं, स्टिचिंग भी कर सकते हैं, ग्लू भी लगा सकते हैं, तो एक सीट तैयार हो जाती है। इसके बारे में जो डेटा होता है उसको हम यहाँ पर राइट लोअर कॉर्नर, आप देखिए राइट साइड में लिखा है, तो इट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द हर्बेरियम सीड्स, द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लांट इज रिटन ऑन विच कॉर्नर ऑफ द सीट। सो इट इज़ द राइट लोअर कॉर्नर। तो आप लोग देख रहे हैं राइट लोअर कॉर्नर पर यहाँ पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसके बारे में लिखी है, इस प्लांट के बारे में। चलिए और आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप, हाउ हर्बेरियम इज फॉर्म्ड। सो स्टूडेंट, दीज आर द स्टेप्स प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम। फील्ड विजिट, यानी जिस प्लांट को हमें चाहिए उस प्लांट को हम फील्ड में विजिट करके ढूंढते हैं। कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, यानी जिस पार्ट को हमें चाहिए या पूरा होल बॉडी ऑफ प्लांट चाहिए, तो उस प्लांट को हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसको ड्राई करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको माउंटिंग ऑन अ हर्बेरियम सीट। तो हर्बेरियम सीट पर हम उसको माउंट करते हैं। अब हर्बेरियम सीट इट इज़ द स्पेसिफिक सीट ऑफ स्पेसिफिक साइज। तो आप लोग देख सकते हैं स्पेसिमेन इज पेस्टेड ऑन अ थिक सीट ऑफ 29 इंटू 41.5 centimeter. It is very important question. It is seen in NEET exam, AIMS exam and also in your exam. So students, 29 multiplied by 41.5 centimeter, it is the size of herbarium seed with the help of glue, टेप और स्टिचिंग, आप समझ सकते हैं इसको। फिर उसके बाद हम लोग प्रिजर्वेशन करते हैं। तो प्रिजर्वेशन में क्या करते हैं, आप लोग जानते हैं प्लांट बॉडी है, इसमें टर्माइट भी लग सकते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स भी लग सकते हैं, फंगस भी लग सकता है, तो इसकी वजह से प्लांट की बॉडी डिग्रेड हो जाएगी। तो बहुत लंबे समय के लिए रिकॉर्ड को स्टोर कैसे किया जाएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, इसका हम लोग क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, इसका स्प्रे कर देते हैं। और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होता है हम लोग के लिए, ह्यूमंस के लिए। और इसको ग्लव्स पहनने के बाद में, मास्क पहनने के बाद में इसको स्प्रे किया जाता है उस सीट के ऊपर, और फाइनली उसको सीट को फाइल में लगा करके और एक स्टोर रूम में रख दिया जाता है। तो आप लोग देखिए प्रिजर्वेशन इस तरह से होता है। लेबलिंग किस तरह से होती है, तो लेबलिंग के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। लेबलिंग अकर्स ऑन लोअर राइट कॉर्नर ऑफ सीट। तो लेबलिंग अबाउट द प्लांट, द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ प्लांट। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कौन से इंस्टीट्यूट में हर्बेरियम जो बन रही है, इसलिए नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आप लोग भी बना सकते हैं अपने स्कूल में, तो आप अपने स्कूल का नाम रख सकते हैं वहाँ पर। साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट, कॉमन नेम ऑफ प्लांट, फैमिली ऑफ प्लांट। फैमिली आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, सोलेनेसी, है ना। इसी तरह से आपने लिलिएसी, ये जो फैमिली आप लोगों ने पढ़ी है, तो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है ये प्लांट, फैमिली ऑफ प्लांट लिखना है। रीजन ऑफ कलेक्शन, तो आप देख सकते हैं कहाँ से वो कलेक्ट किया गया है, वो रीजन कौन सा है, वो जियोग्राफिकल एरिया कौन सा है वहाँ जहाँ से वो कलेक्ट किया गया है। डेट ऑफ कलेक्शन, कौन सी डेट में कलेक्ट किया गया, नेम ऑफ कलेक्टर। सो दीज आर द इन्फॉर्मेशन आर गिवन ऑन द राइट लोअर कॉर्नर ऑफ हर्बेरियम सीड। सो स्टूडेंट, दीज इन्फॉर्मेशन आर मस्ट and these are very important. So in NEET exam also any of them can be asked. कोई सा भी इंफॉर्मेशन यहाँ से पूछा जा सकता है, which information is required for the herbarium seed to mention और लेवल for the plant body। आप लोग देख सकते हैं, आप प्रॉपर स्टोरेज इनका फिर किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप समझते हैं हम लोग
इंपॉर्टेंट हर्बेरिया जो हमारे इंडिया में और वर्ल्ड में कौन कौन से हैं, तो आपका एनसीईआरटी में भी ये दिए हुए हैं। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, ये लंदन में आपका क्यू में ये लार्जेस्ट हर्बेरियम, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हर्बेरियम है। 6.5 मिलियन यहाँ पर कितने हैं स्पेसिमेंस रखे हुए हैं, हर्बेरियम स्पेसिमेंस। न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन न्यूयॉर्क में है, ये आपका 4 मिलियन यहाँ पर है। सेंट्रल बॉटनिकल नेशनल हर्बेरियम इंडिया, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इन इंडिया, ये आपका 2 मिलियन इसमें स्टोर्ड है। मद्रास हर्बेरियम कोयम्बटूर, यहाँ पर आपका 1,50,000 यहाँ पर स्टोर्ड है। हर्बेरियम ऑफ नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इट इज़ वेरी पॉपुलर, सो यहाँ पर 80,000 स्टोर्ड हैं। तो आप लोग इनको याद कर सकते हैं, इस टेबल से आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज बॉटनिकल गार्डन। So what are the botanical gardens? Botanical gardens are the specialized gardens have collection of several living plant species and each plant is labeled with its botanical name, scientific name and family name. Such information is very useful and helpful in taxonomical studies. अब क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये भी क्या है, एक बॉटनिकल गार्डन ही है, इसको अच्छे तरह से सजाया हुआ भी है और यहाँ पर ऐसे प्लांट को रखा जाता है जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। ऐसे प्लांट जो रेयर प्लांट भी होते हैं और जिनको बार बार जहाँ पर उनके नेटिव प्लेस पर जाकर के स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। सपोज जैसे हिमालय पर अगर कोई भी हिमालय पर यहाँ पर अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो हिमालय पर बार बार जाना और उसको स्टडी करना, ये इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन उसको हम आर्टिफिशियली, हालांकि उतना टेम्परेचर या उतना जो स्नो है वो तो हम लोग वहाँ पर नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी लगभग उतना हम लोग आर्टिफिशियली मेंटेन करते हैं एटमॉस्फेयर को या एनवायरनमेंट को उसके आसपास, जिससे वो प्लांट ग्रो कर सके और उसको हम लोग स्टडी कर सकें। तो प्लांट्स को डिटेल्ड स्टडी करने के लिए जो रेयर प्लांट्स हैं हम लोग इस तरह से गार्डन बनाते हैं और उनके बारे में बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम, फैमिली नेम, जो ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन है उसको हम टैग करते हैं। उस प्लांट के ऊपर जो एक प्लेट लगाते हैं जिसके ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। तो आप लोग समझ रहे होंगे बॉटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल से स्टडी करते हैं कौन कौन से बॉटनिकल गार्डन हमारे यहाँ इंडिया में हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, रॉयल बॉटनिकल गार्डन ये हमारा जो है वर्ल्ड में ये लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों लंदन, लार्जेस्ट गार्डन विद कलेक्शन ऑफ ओवर 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट। 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स यहाँ पर रखी गई हैं स्टडी के लिए। फिर नेक्स्ट केबुन राया बॉटनिकल गार्डन, बोजार जावा, spread over an area of 200 acres. The garden has section with virgin rainforest. तो virgin rainforest जो वर्जीनिया में हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता, इट इज़ द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ एशिया, spread over 273 acre, which is famous for its great banyan tree, palm house, सकुलेंट प्लांट्स। सकुलेंट प्लांट्स का मतलब मार्सी प्लांट्स, जो ऐसे जिनकी बॉडी काफ़ी मार्शल होती है। मार्शल का मतलब जिनकी बॉडी थोड़ी पफीनेस होती है या फिर कह सकते हैं जैसे एलोवेरा की जैसी होती है, सकुलेंट प्लांट कहते हैं। यानी कि डेजर्ट एरिया वाले प्लांट वो सकुलेंट प्लांट ही होते हैं, इंडियन ग्रासेस एक्सेट्रा। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर ये एक इंडियन बॉटनिकल गार्डन है जो लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ एशिया है। तो इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज म्यूजियम। सो व्हाट आर द म्यूजियम? म्यूजियम इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर आर्टिस्टिक एंड एजुकेशनल मटेरियल्स आर एग्जिबिट टू द पब्लिक। द मटेरियल्स अवेलेबल इन एग्जिबिशन फॉर स्टडी is called collection. A collection may include scientific specimen, work of arts and exhibit and information on history of technology. तो आप लोग देख रहे हैं ना, इस तरह से इसमें जो कलेक्शन है वो कलेक्शन कई तरह से किया जा सकता है। वो हिस्टोरिकल पर्पज़ के लिए किया जा सकता है या फिर वर्क ऑफ आर्ट के लिए किया जा सकता है या फिर साइंटिफिक स्पेसिमेन को रखा जा सकता है। बायो से रिलेटेड जो स्पेसिमेन है जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इनको रखा गया है। तो ये कलेक्शन जहाँ पर होता है वो उसका स्टोर रूम या वो हाउस, उसको हम लोग म्यूजियम कहते हैं। इनसे हमें मिलता क्या है? ये जो उनके बारे में जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं या फिर एक कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम समझा सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपको अगर मैं म्यूजियम बताना चाहूँ तो जहाँ पर म्यूजियम है वहाँ पर जाकर के मैं
बहुत सारे जितने भी वहाँ पर लिविंग बीइंग के मॉडल्स रखे गए हैं या उनके जो पार्ट्स रखे गए हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से ईजिली समझा सकता हूँ। लेकिन अगर उनके बारे में एक एक जगह जाकर के हम लोग उनको ढूंढें और उनके पार्ट्स या उनके बॉडी या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी हैबिट्स के बारे में स्टडी करें, तो फिर हमें बहुत समय लग जाएगा। तो जगह जगह जाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए एक ही जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिमेंट्स को रखा जाता है, जिससे उनके बारे में डिटेल्ड स्टडी कम समय में की जा सके। तो स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड के बारे में, जो आपका जूलॉजिकल पार्क है। तो जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं? दीज आर पार्क्स वेयर वाइल्ड एनिमल्स केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर। ऑल एनिमल्स इन जू इज प्रोवाइडेड with a condition similar to natural habitat. Such zoological parks become the center of taxonomical studies to study animal behavior and also used for research and breeding. तो आप लोग जानते हैं कि जब एनिमल्स को हम लोग उनके नेचुरल हैबिटाट से, जो है जहाँ पर वो नेटिव हैबिटाट से निकाल करके हम लोग आर्टिफिशियली मेंटेन नेचुरल हैबिटाट में रखते हैं। तो आर्टिफिशियली मेंटेन जैसे आप समझ सकते हैं कि किसी भी एनिमल को ला करके हम लोग उसको आर्टिफिशियली वो नेचुरल सारी रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी जगह पर रखते हैं, तो उसको हम लोग जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। अब इससे हमको मिलता क्या है? उससे हमको ये मिलता है कि हम उनके बारे में डिटेल से स्टडी कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं और उनकी टेक्सोनॉमिकल स्टडी कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। बहुत सारे जूज आप लोग जानते हैं जो इंडिया में सिचुएटेड हैं, तो आपको बहुत सारे जूज के बारे में मैं यहाँ पर एक मैंने ग्राफ, ये पूरा एक मैप लिया है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट लेकर के जगह जगह कौन कौन से आपके जो जू हैं अलग अलग स्टेट्स में, उसको आप लोग डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखाया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये अलग अलग जो आप जानते हैं, यहाँ गुवाहाटी में भी एक जू है, तो ये भी आपका कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए ही इस्टेब्लिश किया गया है, फॉर एंटरटेनमेंट ऑल्सो। चलिए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड के बारे में, जो क्या है टेक्सोनॉमिकल की। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो लिटिल बिट टिपिकल। स्टूडेंट्स टेक्सोनॉमिकल की या टेक्सोनॉमिक की, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड। व्हाट इज़ इट? ये क्या होता है स्टूडेंट्स? जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम जब कंपेयर करते हैं टू करेक्टर के बेस पर, तो उसको हम लोग टेक्सोनॉमिक की कहते हैं। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। की इज़ अनदर इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़। यानी किन्हीं भी एनिमल्स या प्लांट्स के बीच में हम सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बेस पर उनको जब हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग टेक्सोनॉमिकल की कहते हैं। Key based on the contrasting characters generally in a pair called couplet. It is very important statement. It is given in NCERT and also important for your exam as well as NEET and AIMS. So couplet. What is couplet? Key couplet. Key based on the contrasting character. So contrasting characters generally are used in a pair are called couplet. Each statement in the key is called lead. Each statement in the key is called lead. जैसे मान लीजिए अगर हमने क्या किया, दो करेक्टर को हमने कंपेयर किया। सपोज अगर हमने स्किन डिज़ाइन या फिर स्किन के ऊपर जो डिज़ाइन होती है, आप लोग देख रहे हैं ये आपका लेपर्ड है, ये लेपर्ड है और ये आपका टाइगर है। तो टाइगर और लेपर्ड के ऊपर स्किन डिज़ाइन, तो ये क्या है? करेक्टर है। और उस करेक्टर के अंदर जैसे मान लीजिए स्किन डिज़ाइन, तो आप देख सकते हैं इस स्किन डिज़ाइन में हमने दो स्टेटमेंट ले लिए। अब मान लो हमने कहा लाइनिंग ऑन स्किन और स्पॉट ऑफ स्किन, स्पॉट ऑन स्किन। तो स्पॉट एंड लाइनिंग, तो आप समझ सकते हैं स्पॉट एंड लाइनिंग, ये दो क्या हो गए? स्पॉट एंड लाइनिंग, दीज आर द लीड्स एंड दैट वन अर्लियर वी हैव टेकन द करेक्टर स्किन डिज़ाइन। तो वो क्या हो जाएगा? एक कॉपलेट में से एक आपका एक करेक्टर हो जाएगा। तो वो करेक्टर हो गया और दो लीड हो गए। तो आप लोग समझ सकते हैं। और थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सेपरेट टेक्सोनॉमिकल कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज लाइक फैमिली, जीनस, स्पीसीज फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पज। अब देखिए यहाँ पर जो हमने दो पिक्चर लिए हैं, यहाँ पर ये लेपर्ड है अंदर बैकग्राउंड में और यहाँ पर ये क्या है? टाइगर है। तो अब ये क्या है? इनका दोनों का जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर
जो जीनस है वो सेम हो सकता है, लेकिन इनका जो स्पीसीज है वो अलग अलग है। जैसे मान लो हमने टाइगर और लॉयन इन दोनों को कंपेयर किया, तो टाइगर और लॉयन इन दोनों का जीनस कैसा है, सेम। तो जीनस कैसा है, सेम जीनस है, और इस सेम जीनस के अंदर स्पीसीज कैसी हैं, अलग अलग हैं। यानी कि हम इनको अलग अलग लेवल पर स्टडी कर सकते हैं, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, यानी डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर इसको स्टडी कर सकते हैं। द अदर टाइप ऑफ की फॉर टेक्सोनॉमिक स्टडीज आर फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग। तो ये क्या है आपका फ्लोरा मैनुअल्स। फ्लोरा मैनुअल्स आप लोग जानते हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, उसकी एक मैनुअल होगी। मोनोग्राफ हो सकता है, कैटलॉग हो सकता है। दीज हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आप लोग समझ सकते हैं। अब जो टेक्सोनॉमिकल कीज़ हैं वो आपका मेनली दो टाइप की टेक्सोनॉमिकल कीज होती हैं, एक इंडेंटेड और एक ब्रैकेटेड। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप इतना याद रखिए, दीज आर टू टाइप ऑफ टेक्सोनॉमिक कीज, ब्रैकेटेड कीज एंड इंडेंटेड कीज। सो दीज आर टू टाइप ऑफ टेक्सोनॉमिकल। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग चलिए समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक नया कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है और वो दिखने में क्रो की तरह दिखता है, क्रो की तरह दिखता है। तो हमने दो करेक्टर ले लिए अब यहाँ पर। तो दो करेक्टर मान लीजिए क्या ले लिया, एक तो हमने ले लिया बॉडी कलर, और यहाँ पर एक ले लिया हमने, अब ये देखिए दो कंट्रास्टिंग करेक्टर होंगे। अब यहाँ पर ये क्या होगी, बॉडी कलर टेस्ट हो गई। अब यहाँ पर एक क्या है, ग्रे, ठीक है, और ब्लैक, ग्रे और ब्लैक। अब ये क्या हो गए हमारे, ये करेक्टर हो गए कंट्रास्टिंग करेक्टर। तो ग्रे और ब्लैक आर द कंट्रास्टिंग करेक्टर, इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, कॉपलेट कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉपलेट, कॉपलेट। तो ये कॉपलेट हो गए। अब इसके बारे में हम लोग स्टेटमेंट देते हैं, यानी कि इन कॉपलेट्स के बारे में स्टेटमेंट देते हैं। तो ये कॉपलेट हम लोग कह सकते हैं ग्रे, और नेक्स्ट होगा हमारा ब्लैक। तो इसके बारे में हम लोग अब दो दो क्या देंगे, स्टेटमेंट देंगे। अब वो दो स्टेटमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे जो नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है हम उसके बारे में देंगे कि न्यू ऑर्गेनिज्म हैज ग्रे बॉडी। तो ग्रे बॉडी उसमें है। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा स्टेटमेंट देते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैज़ ग्रे बॉडी। तो अब मान लो यहाँ पर दो स्टेटमेंट हो गए। अब यहाँ इनकी जगह हम लोग सीधे यस और नो भी लिख सकते हैं। तो इनमें से एक चॉइस लेनी होती है हमें। तो टेक्सोनॉमिक्स कीज क्या होती हैं, एक चॉइस होती है। तो हमने दोनों में से एक चॉइस करनी होगी, दोनों में से एक ही चुनना होगा। तो ये क्या हो गया हमारे कॉपलेट दोनों, और इनमें से ये एक जो आपका करेक्टर है कंट्रास्टिंग करेक्टर, एक करेक्टर के दो क्या हो गए, स्टेटमेंट हो गए, जो ये डिसाइड करते हैं एक ही चॉइस में कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है। तो अब यहाँ पर देखिए ये दोनों करेक्टर्स जो हमने स्टेटमेंट लिए हैं, इन दोनों स्टेटमेंट को हम लोग क्या कह रहे हैं अब यहाँ पर, लीड। तो ये हमारे लीड हैं, ये क्या हैं, कॉपलेट हैं। तो कॉपलेट्स और लीड्स आप लोग समझ रहे होंगे क्या है, यहाँ पर ये चॉइस लेनी है। तो अब यहाँ पर ब्लैक के बारे में भी ऐसे ही ले लेते हैं, येस लिख लेते हैं और नो लिख लेते हैं, यानी कि उसकी बॉडी ब्लैक है या नहीं है, ग्रे है या नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे इस तरह से हम चॉइस करते हैं, तो इनको हम टेक्सोनोमिक कीज कहते हैं। अब बात करते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है डाइकोटोमस, डाइकोटोमस कीज। अब यही टेक्सोनोमिक कीज को हम डाइकोटोमस कीज कहते हैं। डाइकोटोमस का मतलब क्या होता है उसको ध्यान से समझिए। जैसे अभी हमने जो क्या लिया था, मान लीजिए नया ऑर्गेनिज्म है कोई, उसको हमने डिस्क्राइब किया और लिया हमने उसका बॉडी कलर। तो बॉडी कलर कैसा है, तो बॉडी कलर यानी कि इसकी दो ब्रांचेस निकल गई, एक आपका ग्रे और एक आपका ब्लैक। तो ग्रे और ब्लैक यानी इसकी दो ब्रांच हो गई। अब इसकी भी दो ब्रांच होंगी, यस नो, यस नो। यानी कि आप समझ रहे हैं आप कि यहाँ पर हर जो पॉइंट है उसके दो ब्रांचेज हैं, यानी कि जो आपके कॉपलेट हैं, कॉपलेट में से एक करेक्टर के दो क्या हो गए, लीड हो गए। तो अब इसी तरह से इसमें दो ब्रांचिंग है, डाई का मतलब टू और कोटोमस का मतलब होता है ब्रांच्ड। यानी कि जब कीज में इस तरह से दो ब्रांचिंग होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइकोटोमस
ब्रांचेज या डाइकोटोमस कीज, सॉरी डाइकोटोमस कीज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। अगर आपको इंडेंटेड की और ब्रैकेटेड की के बारे में और जानना है या फिर इसमें कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना करके आपको इसमें समझा सकता हूँ। सो स्टूडेंट्स ये वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can comment in the comment box and also share and subscribe. So thank you for watching this video.